السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا خادم آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کا نیشنل اسپوک پرسن الحمدللہ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے جواب دے رہا ہوں صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کو. آپ نے آڈیو بھیجے ہیں آج 18 منٹ کا. 26 اکتوبر 2024 کو آپ کا ویڈیو آیا ہے, 10 بجے کے بعد آیا ہے. میرے ویڈیو کے جواب میں 25 اکتوبر 2024 کا میرا جو ویڈیو تھا یسٹرڈے کا, اس کے جواب میں آپ نے دیے ہیں. اس میں آپ نے جو کچھ بھی بولے ہیں ہر بات پر تو میں آپ کی گرفت نہیں کر سکتا, مختصر ویڈیو سے جواب دینا ہے. اہم بات یہ بولنے جا رہا ہوں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. قرآن مجید میں سورہ 3 آیت 54 میں اللہ نے کہا آپ جو مکر کر رہے ہیں آپ کے آڈیوز کے ذریعے سے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لفاظی سے لفظوں سے کھیل رہے ہیں. آپ اللہ سے ڈریے. آپ مناظرے کی رٹ میں لگایا ہوں, ڈر جائیے اللہ سے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی عوام کو. آپ لکھے ہیں آپ کا میسج 24 اکتوبر 2024 تھرسڈے آپ کا میسج آیا ہوا تھا مغرب سے پہلے کا, عشاء سے پہلے کا. سنی جمعیت الاحناف چینل آپ کے چینل سے فارورڈ کیا گیا میسج. آپ نے کیا کہا کہ آپ کا یوٹیوب چینل آپ کا کوئی شاگرد سنبھالتا ہے اور واٹس ایپ چینل آپ خود جو ہے دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ لکھے اور آپ نے شیئر کرے. کیا ہے اس میں؟ حیدرآباد کے گستاخ اہل حدیث ڈیش ڈیش کی بکواس سے مناظرے کا ماحول بنا ہے. جلد از جلد اہل حدیث فصیح الدین مناظرہ کرے, ورنہ یاد رکھو حیدرآباد کے چپے چپے پر قہر کلیم بر وہابی زنین کے جلوے دکھیں گے. یہ اس 17 سے 18 سال کے نوجوان کے بارے میں آپ نے یہ میسج لکھے, جبکہ اس نے 20 سپٹمبر 2024 کو معافی بھی مانگ لیا, پھر 24 اکتوبر 2024 کو معافی مانگا. یسٹرڈے 25 اکتوبر 2024 کے ویڈیو میں نے آپ سے بولا. خیر یہ 24 اکتوبر کا آپ کا میسج ہے, اس میں آپ اس نوجوان کی وجہ سے مناظرے کا ماحول ہے وغیرہ بول رہے, لیکن آپ کیا بول رہے؟ جلد از جلد اہل حدیث فصیح الدین مناظرہ کرے, ورنہ یاد رکھو حیدرآباد کے چپے چپے وغیرہ وغیرہ زنیم لکھ رہے, کیا کچھ لکھ رہے. اللہ سے ڈرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بھول گئے کیا؟ آپ نے لکھے نا مناظرے کی جلد بازی کس کو تھی؟ آپ کو چیلنج آپ دیتے ہیں 17 اکتوبر 2024 کے آپ کے آڈیو میں. وہ چیلنج کو ایکسپٹ کرے. ہم پولیس پرمیشن مانگنے گئے کہ اسی مشیرآباد میں ایک بند کمرے میں ہو جائے مناظرہ آپ سے, اور آپ کی اصلیت ہم وہیں کھول کے رکھ دیں گے علم کے ذریعے سے. آپ جو ہے سمجھے ہوئے ہمارے وہ کال ریکارڈنگ کو, آپ سمجھے ہوئے ہمارے 24 اکتوبر کے ویڈیو کو, 25 اکتوبر کے ویڈیو کو, پھر آج 26 اکتوبر کے ویڈیو میں پھر آپ مکاری کرتے ہوئے جھوٹ بولتے. آپ کس کو بیوقوف بنایا؟ آپ اہل علم کو, متبع کتاب و سنت کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. جاہلوں کو اور گمراہوں کو آپ بنا رہے ہیں. اللہ وہ بلائنڈ فالوورز کو توحید و سنت عطا کرے, آمین, جو آپ کی بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں. آپ مناظرے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, آڈیو بازی بول رہے ہیں. آپ آڈیو بازی آپ کریں. یاد دلاؤں, آپ میرے 24 اکتوبر 2024 کا ویڈیو کا جواب فوری طور پر دے دیا. اسی رات کو آپ کا 14 منٹ 20 سیکنڈ کا آڈیو آ گیا تھا, وہ کافی تھا. لیکن پھر آپ کسی آستانے پر جاتے ہیں, پھر اپنے بلائنڈ فالوورز کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے وہاں جا کے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا کیا وغیرہ کیا. پھر وہاں پر پھر آپ اس آڈیو میں بھی جو ہے آپ کی اخلاق رذیلہ جو ہے وہ بتائے ہیں. آپ اس کے اندر اخلاق حسنہ تو ہمارے پاس ہے, آپ کو کیا ضرورت تھی فوری دوسرا آڈیو 8 منٹ کا ڈالنے کی؟ آڈیو بازی آپ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ جو ہے دونوں طرف کی آڈیو بازی رک جائے یا دونوں طرف کی آڈیوز رک جائے. آپ کر رہے ہیں عوام کو گمراہ. آج آپ کے سنی جمعیت الاحناف چینل واٹس ایپ سے آپ نے 3 منٹ کچھ سیکنڈ کا آپ نے وائرل کرے. سٹارٹنگ میں میرا نام لیتے ہیں, اینڈ میں میرا نام لیتے ہیں, بیچ میں آپ کچھ کیا کریں آپ کے عوام کو جنہوں نے آپ کو 2 روپے بھیجے ہیں, کیا کرے آپ؟ وہ آڈیو آپ کا میرے پاس پہنچا ہے, سنا میں, اس کام کے لیے کر رہے آپ, تکسب کے لیے کر رہے آپ. مناظرہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے جو بندے گمراہی کے اندھیروں میں ہیں ان کو کتاب و سنت کی روشنی کی طرف لانا ہے, وہ میری نیت ہے. اللہ علیم بذات الصدور, میرے سینے میں جو چل رہا ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے, اور جو میرے سینے میں وہی میری زبان پر بات ہے. میں سینے میں کچھ اور زبان پر کچھ اور نہیں رکھتا ہوں. میری طرف یہ ہے کہ جو گمراہ
हो रहे हैं आपकी गुमराह कुन बातों से, वो लोग सच्ची तौबा करके वो सहाबा की जमात हक्का जमात अहले हदीस के हो जाएं, ये मेरी तरफ है। इहकाक हक इब्ताल बातिल आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते वो सब, क्योंकि आप बातिल पर है। इहकाक हक इब्ताल बातिल हम कर रहे हैं और करेंगे। आप आइए 27 अक्टूबर 2024 को आप आइए डिबेट के लिए। आप 15 नवंबर बोलते हैं, आप 25 नवंबर बोलते हैं, आप जो है दिसंबर पूरा महीना, जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना किस लिए बोलते हैं? 4 महीने में बहुत कुछ करा लेने का है क्या? इंतजाम आपके जाती, आपके भोले भाले आवाम से, उन लोगों को गुमराह कर कर मेरे नाम से आप जो है क्या कर रहे हैं? आज के 3 मिनट के ऑडियो में मालूम हुआ। स्टार्टिंग में मेरा नाम लेते, एंड में मेरा नाम लेते, बीच में बहुत कुछ बोलते हैं, बहराइच के लिए ऐसा और वैसा। क्या है ये? अल्लाह से डरो। और आप क्या कहते हैं कि मुनाजरे के लिए एक किताब है, वो पढ़ना था, वो नहीं पढ़े होंगे। कौन सी? मुनाजरा रशीदिया, जब कभी भी लिखी गई होगी वो 1000 हिजरी के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, हम अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुनाजरे का अबजद जानते, अल्लाह की मदद से। ये देखिए, ये किताब 478 हिजरी में इंतकाल कर जाने वाले इमाम जुवैनी, जिसको इमाम उल हरमैन के नाम से जाना जाता है, उनकी किताब है अल काफियतु फिल जदल। ये किताब में उन्होंने सफा 47 पर क्या लिखे हैं? सफा 47 पर क्या लिखे हैं? यक़ूल जुवैनी फी ज़ालिक फ़अव्वलु शैइन फ़ीही मिम्मा अला अन्नाज़िर अन यक़सिद अत-तक़र्रुब इला अल्लाह सुब्हानहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करना है मुनाजिर को, मुनाजरे के जरिए से। और ये दर्द और ये तकलीफ अपने सीने में रखना है कि जो गुमराह आवाम है वो गुमराही की दलदल से निकल जाए, किताब और सुन्नत के नूर को कबूल करके वो लोग जन्नती रास्ते सबील मुमिनीन पे लग जाए। ये तड़प होना चाहिए मुनाजिर की। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है वतलब मरदातिही फी इम्तिसाली अमरिही सुब्हानह फीमा अमर बिही मिनल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर वद्दुआ इलल हक अनिल बातिल। यह होना चाहिए मुनाजरे का मकसद। मुनाजरे का मतलब यह नहीं है कि आप हार जीत की बात कर रहे हैं, आप हार जीत चाहते हैं, आप इहकाक हक व इब्ताल बातिल वगैरह बोल रहे हैं। हमारी तड़प यह है कि जो गुमराही में है, आपके गुमराह फॉलोअर्स, जैसे मैं भी गुमराह था बरेलवी रहने, जब तक गुमराही के अंधेरों में थे, कुरान और हदीस से दूर थे, आपके जैसे किस्से कहानियां सुनाने वाले जाहिल और गुमराह मौलवियों की बातों को ही इस्लाम समझ के जो चलते थे, हम तौबा करके जमात हक्का जमात अहले हदीस के सहाबा की जमात में है 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल मैं खुद भी देवबंदी रहा और कुछ महीने में जो है SIO वगैरह से भी रहा। बहरहाल तो 2008 से मैं अहले हदीस हूं अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़ रहा हूं। बेशक मैं तिफले मक्तब हूं, मुहद्दिस मक्का फजीलत शेख वसीउल्लाह अब्बास हफिज़हुल्लाह के सामने। बेशक मैं तिफले मक्तब कहूंगा जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह के सामने, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिज़हुल्लाह के सामने। उनसे क्या डिबेट करते आप? ये 6 नाम आप लिए हैं, शेख जलाल, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब, किफायत साहब और अब्दुल गफ्फार सलफी साहब, शेख मेराज रब्बानी साहब, शेख तौसीफ रहमान साहब, इनका नाम लिए। ये हमारे सर के ताज हैं, शेख मेराज रब्बानी, शेख तौसीफ रहमान, शेख वसीउल्लाह अब्बास, शेख जलालुद्दीन कासमी, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी, ये मेरे सर के ताज हैं। इन बुजुर्गों के जमाअत के इस नौजवान से आप जो है, नौजवान कह रहा हूं, बहरहाल मैं जवान हूं, नौजवानी से निकल के अब जवान हूं माशाअल्लाह, इस जवान से आप डिबेट नहीं कर सकते। हमारे बड़े लोगों से क्या डिबेट करेंगे आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आपको डिबेट सिर्फ और सिर्फ तकस्सुब है, बस और कुछ नहीं। आप तकस्सुब जो है कर रहे हैं। याद रखिए, कस्ब हलाल होना चाहिए। किसी का नाम लेकर मुनाजरे का मसला छेड़ लिए हैं और जो है अपना कस्ब देख रहे हैं। आपकी एक बात पकड़ रहा हूं यहां पर। आपने क्या कहा? आप इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं इस डिबेट को, इसलिए जल्दी नहीं कर रहे, फसी के दिए हुए 3 दिन में आप नहीं आ रहे, क्योंकि आपको कारोबारी मीटिंग है, आपको किसी की शादी वलीमे में जाना है, यह इंपॉर्टेंट है आपको। सुभान अल्लाह। और आप क्या कह रहे हैं कि फरवरी में या जनवरी वगैरह में आपका दौरा है मलेशिया का, आपका दौरा है इंडोनेशिया का, आपका दौरा है अमेरिका का। और वो दौरा किस चीज का? आपने कहा कि इशाअत दीन के लिए, तबलीग दीन के लिए, आपके बातिल मजहब की नशर इशाअत करने के लिए आप जाना चाहते हैं अमेरिका। है दौरा, आपके चाहने वाले बुला रहे हैं, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं और आप फसीउद्दीन हैदराबादी के लिए रुकना चाहते हैं फरवरी में डिबेट के लिए। तो वो जो काम है आपके मुताबिक बड़ा काम होगा, आपका बातिल मजहब आप फैलाना चाहते हैं, तो वो आप पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन ये 2-3 दिन की आप जो है
किसी रिश्तेदार की शादी या आपकी कारोबारी मीटिंग, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते आप। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरिए। आप क्या बोल रहे हैं, चंदे के लिए नहीं करते। आइए, आपके सुन्नी जमीयतुल अहनाफ चैनल से आपने खुद ये शेयर करें ना। और क्या लिखे आप, 11वीं शरीफ का महीना है और जुमा का मुबारक दिन भी है। हर सुन्नी कोशिश करे तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में सरकार गौसे पाक को ईसाले सवाब की नियत से आज 111 रुपए का नफली सदका पेश करे। आपकी रकम का इस्तेमाल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के जरिए दीनी व फलाही कामों में होगा। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और इंशाअल्लाह बिगड़े काम भी बनेंगे। यह है आपका काम। आप बोल रहे कारोबारी मीटिंग है वगैरह वगैरह, और फिर आप चंदे के लिए नहीं कर रहे बोले, फिर ये क्या है, ये क्या है, ये आज का ऑडियो भी क्या है और ये क्या है। आपके अकीदे से टकरा रहे हैं। आपका ये स्क्रीनशॉट पकड़ना चाहूं तो अभी पकड़ के बता सकता हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब आप सामने आएंगे तो बताऊंगा इसके अंदर आपके अकीदे से टकराने वाली क्या लाइन है, बता सकता हूं आपको। अल्लाह से आप नहीं डरते, हम अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हैं। आप याद रखिए, आप याद रखिए कि मैं डिबेट के लिए रेडी हुआ, मैं पुलिस के पास गया था परमिशन के लिए, नहीं मिला उस वक्त 17 अक्टूबर को। 18 को आप आए, आके आपने कहा, वो तकरीर मेरे पास पहुंचाई गई आपके 18 अक्टूबर 2024 की मस्जिद बिलाल मुशीराबाद में जो आपकी हुई, उसमें आप दहशतगर्द और टेररिस्ट और क्या कुछ बोले आप अहले हदीस को। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। मैं आईपीएस ऑफिसर के सामने बैठकर सवालों के जवाब दिया हूं। आप जैसे लोगों ने झूठे बातें जो आईपीएस तक पहुंचाए हैं जमात हक का, जमात अहले हदीस के बारे में, वो आईपीएस ऑफिसर वो जान रहे, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आईपीएस, एक नहीं कई आईपीएस जो मुझसे बात करे हैं, वो ये जानते हैं कि वो मुझे बुलाए हैं और जो दरगाह वाले हैं उन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। आप आपके बारे में बताओ। स्पेशल ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स ने मुझसे सवाल किए और मैंने उनको जवाब दिया। तो आप वहां पर आके फसाद मचाना चाहते थे। आप 18 अक्टूबर को आपकी तकरीर में फसादी बातें आपने किए हैं। यह तरीका है आपका। आप क्या इल्म वाले हैं, आपके पास कुछ इल्म नहीं। आप सुनिए, आप सुनिए ये बात। आपने ये कहा कि मैं फसीहुद्दीन को क्या मुंह लगाऊं, बड़े बड़े लोगों के नाम गिने आप, और शेख तौसीफुर रहमान हफिज़हुल्लाह के नाम के साथ आपने क्या कहा। अल्लाह से नहीं डरे हैं आप और नहीं डरते आप, इसलिए आप जो है एक तौहीद सुन्नत के दाई, तौहीद सुन्नत के बड़े मुबल्लिग के खिलाफ आपने लफ्ज शैतान इस्तेमाल किए। आप अल्लाह से नहीं डरते हैं, आप इल्म वाले नहीं हैं, आपके पास अखलाक हसना नहीं है। आपने आपके सर्टिफिकेट्स गिनाए कि आपके पास फुला सर्टिफिकेट और फुला डिग्री फुला सनद है, और आपने मुझे कहा कि मैं यहां वहां जो कुछ भी पढ़ लिया हूं या मेरे पास सनद नहीं है। आपने कहा आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कलीम हनफी रजवी, आपके बारे में जितना भी जान रहा हूं आपके वीडियोस और आपके ऑडियो से जान रहा हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखें बोल रहे हैं, और आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स मुझे जो कमेंट्स में गालियां दे रहे हैं बोल रहे हैं, उस पर भी आपने बोलते हुए आगे बढ़े हैं। तो आपको अच्छा लगता है। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उन लोगों को तौहीद और सुन्नत की दौलत अता करे, अखलाक हसना की दौलत अता करे। वो किसी भी मुसलमान को गाली ना दे और गाली देकर मुनाफिक ना बन जाए। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। और ये बात सुनिए, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है ना, वो तमाम सर्टिफिकेट्स को एक तरफ रखिए। आपने शेर हिंदुस्तान लिखे आपके लेटर हेड पे, और इसके लिए आप दलील दे रहे हो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। आप कौन सी आयत कहां फिट करना उतना भी इल्म नहीं रखते हैं, समझे। और आप जो है मुबालगे से काम ले रहे हैं। और आपकी सर्टिफिकेट्स के बारे में कहते हुए एक बात कह दूं कि आपने आपके बारे में कहा कि आप हनफी मुक़ल्लिद है, और मुक़ल्लिद के बारे में उसूली बात क्या है। कई किबार अहले इल्म और इस बात को नकल भी किए, कई किबार अहले इल्म की बात को इमाम इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह ने नकल किए जामे बयान इल्म व फ़ज़्लिही में। लिखते हैं कि मुक़ल्लिद के बारे में, वल मुक़ल्लिदु ला इल्म लहु वलम यख्तलिफू फी ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। यानी जो मुक़ल्लिद होता है ला इल्म लहु, उसके पास कोई इल्म नहीं होता, और वलम यख्तलिफू फी ज़ालिक, और इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ भी नहीं है। यह बात मुसल्लम है और सही और वाज़े तौर पर समझाई गई है हर दौर में कि जो मुक़ल्लिद अपने आप को बोल रहा ला इल्म लहु, उसके पास कोई इल्म नहीं है, और इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है इस बात में। तो आप जब अपने आप को हनफी मुक़ल्लिद कह रहे हैं तो आपके पास कोई इल्म नहीं है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल
मुत्तबे किताब व सुन्नत हूं। जितना भी मेरे पास इल्म है ना, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की तौफीक से, जितने असातिज़ा के सामने जानवे तलब मुस्तै किया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अकीदे वाले सहाबा के मुताबिक, बेहतरीन अमाल वाले सहाबा के मुताबिक, वो मुत्तबे किताब व सुन्नत का शागिर्द मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाम गिना सकता हूं अपने असातिज़ा का। मैं जितना भी इल्म मेरे पास है, उसी इल्म के जरिए से मैं आपके साथ बैठकर आपसे मुनाजरा करना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि आपके पास सही अकीदा नहीं है सहाबा के मुताबिक, आपके पास सही अमाल नहीं है सहाबा के मुताबिक। सहाबा कॉपी करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुत्तबे थे सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे, इताअत करते थे। तो आपके पास नहीं है, मेरे पास जितना इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए, बैठ के बात करते हैं। आपके पास 27 अक्टूबर 2024 पूरा दिन है, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अगर कल जोहर की फ्लाइट से भी आ रहे तो इंशाअल्लाह रात में 12 बजे तक भी बैठ के जो है पहली नशिस्त में उसूल और दोनों के दस्तखतें हो जाएंगे उसूल मुनाजरा के, फिर जो है इंशाअल्लाह मुनाजरा भी हो जाता है। लेकिन आप अल्लाह से नहीं डर रहे हैं और ये मकर जो आपका है आपके ऑडियो से वाज़ेह हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ने कहा, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरिए और झूठ फैलाना छोड़ दीजिए और जल्दी आने की कोशिश करिए। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत कुछ कह गए हैं, बहुत सारी बातों का आपके रद्द करना था, लेकिन एक अहम बात, इमाम इब्न अब्दुल बर रहिमहुल्लाह 463 में इंतकाल कर गए। उन्होंने लिखा है किताब अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिन अल-मआनी वल असानीद, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 238। क्या लिखते हैं? अजमा अहलुल फ़िक़्ह वल हदीस अला अन्नल ईमान क़ौलुन व अमलुन वला अमल इल्ला बिनियतिन वल ईमान इंदहुम यज़ीदु बित्ताअ व यनक़ुसु बिल मासियह वत्ताअतु कुल्लुहा इंदहुम ईमानुन इल्ला मा ज़ुकिरा अन अबी हनीफ़ा व अस्हाबिही फ़इन्नहुम ज़हबू इला अन्न अत्ताअति ला तुसम्मा ईमानन क़ालू इन्नमल ईमानु अत-तस्दीक़ु वल इक़रारु व मिनहुम मन ज़ादा वल मारिफ़ा। तर्जुमा सुन लीजिए। तमाम अहले फ़िक़्ह और अहले हदीस का इजमा है कि ईमान कौल और अमल है और अमल बगैर नियत के नहीं है, और ईमान इताअत से बढ़ता है और नाफरमानी से घटता है, कम होता है। और उनके पास सारी इताअत नेकी है सिवाय अबू हनीफा और उनके असहाब। उनका मजहब है कि इताअत यानी अमल को ईमान नहीं कहना चाहिए, अमल को ईमान नहीं कहना चाहिए। ईमान सिर्फ तस्दीक और इकरार का नाम है, और बाज ने मारिफत का भी इजाफा किया है। अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिन अल-मआनी वल असानीद, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 238। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले फ़िक़्ह अहले हदीस का जो ईमान है ये इजमा हो चुका है इस बात पर। और अहलुर राय इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब जो है अहलुर राय, वो लोग क्या कहते हैं आप सुन चुके हैं। आप मुर्जी हैं, आप का इर्जा आपको बताऊंगा सामने जब बैठेंगे आप इंशाअल्लाह। आप जहमी हैं, मैं बताऊंगा आप कैसे जहमी हैं। आप मातुरीदी के मुक़ल्लिद हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप आ जाइए, आप मेरी जमात हक्का, जमात अहले हदीस जो सहाबा की जमात है, उस जमात के मौजूदा उलमा के नाम ना गिनिए कि मैं उनके साथ बैठ के डिबेट करना वगैरह। ये जो आप शोहरत हासिल करने के लिए ये जो बड़े बड़े उलमा के नाम ले रहे हैं, दर्जा अल्लाह से। जमात अहले हदीस का एक जवान से आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। आप आइए, आपको बताता हूं खोल खोल के किताबें कि आप क्या हो, आपको बताता हूं। जल्दी आ जाइए और अब देर ना करिए, और यह ना कहिए कि जो है नहीं मैं 15 नवंबर को ही बोला हूं। आपकी बात से टकरा रही है। आपके लिए शादी और वलीमे की दावत में जाना ज्यादा अहम है, आपके कारोबारी मीटिंग की अहमियत ज्यादा है आपके फरवरी के मलेशिया के दौरे से। आप उसको रद्द कर सकते हैं मेरे से डिबेट के लिए, सुभान अल्लाह। लेकिन आप जो है शादी वलीमा और कारोबारी मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकते आज और कल आप डिबेट के लिए आने में, सुभान अल्लाह। 27 अक्टूबर आपको आना है,
آپ آئیے جلدی سے، میں انتظار کر رہا ہوں، اور بلائنڈ فالوورز کو کہہ رہا ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ کو گالی نہیں دوں گا۔ مجھے گالی دیتے ہیں آپ، میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو قرآن اور صحیح احادیث کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دے، علماء حق، علماء اہل حدیث کے سامنے بیٹھ کر صحیح عقیدہ، صحیح اعمال، اخلاق حسنہ سیکھنے کی توفیق دے، اور ایسے گمراہ مبلغین، ضال مضل جن کو کہا گیا حدیث میں، یہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے مکر سے، ان کی لفاظی سے اور لوگوں کو جو ہے لبھانے والی باتوں سے اپنے طرف کر رہے ہیں، ان سے آپ لوگ دور رہیے۔ آئیے آپ لوگ، السلام علیکم۔